everyone. Welcome back to the weekly webinar cum training session of Rajlakshmi Solutions Private Limited. On behalf of Rajlakshmi team, I would like to welcome all the attendees here. I am Anaga representing Rajlakshmi Solutions Private Limited. So today we are going to talk about some tips and tricks in Tally Prime. So before moving ahead to the today's topic, let's take a small introduction of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So we are into the multiple segments, that is sales, services, solutions, implementations and developments. We are also into the multiple softwares, that is Tally Prime, SAP B1, Bitrix 24 CRM and Skill India. So now moving ahead to the today's topic, but before moving ahead to today's topic, just we'll welcome our speakers. So the presentation will be conducted by Diksha. So Diksha, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the live demonstration will be done by Aarti. So Aarti, are you here? Yes, ma'am. Okay, and the resource person, Mr. Bhagwati Dandaria. Sir, are you here? Yeah, I'm available. Thank you. Hearty welcome all of you. So now I request Diksha and Aarti to move ahead with your presentation. Okay, ma'am. Point number 1, negation of voucher in daybook using page up and page down key. Voucher type shortcut key. पेज अप और पेज डाउन की यूज करने से हमें वाउचर इन डेबुक में निगोशिएशन दिखाई देता है. पॉइंट नंबर 2, इन डेबुक व्यू वाउचर वाइज रिपोर्ट्स एंड एक्सेट्रा. The daybook list all transactions made in the particular day and default display last voucher entry, date of the regular voucher. It could also set up to list all the transactions made over current period. डे बुक में हमें पर्टिकुलर डे में दीक्षा आपकी आवाज नहीं आ रही है. सर अभी आ रही है? It's audible. डे बुक में हमें Team, I am really apologize. Please give me a few minutes. डे बुक में हमें पर्टिकुलर डे में कितने ट्रांजैक्शन होते वो दिखाई देते हैं. पॉइंट नंबर 3, narration of each entry. Short explanation is narration is writing under each ledger entry, which is also called ledger narration. The subject matter of the transaction can be. टैली प्राइम में हमें हर ट्रांजैक्शन के नीचे हम नरेशन लिख सकते हैं जिससे हमें उस सब्जेक्ट का पता चल सकता है. पॉइंट नंबर 4, प्रिंट आफ्टर सेविंग द वाउचर. Go to account info, inventory info, voucher type, alter, set the option print voucher after saving to yes. You can set this option is respective voucher type to master to print all voucher invoice created using the particular voucher type automatically after saving. पर्टिकुलर वाउचर टाइप में यूज करते समय सभी वाउचर इनवॉइस को प्रिंट करने के लिए रिस्पेक्टिव वाउचर टाइप मास्टर इस ऑप्शन को हम सेट कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 5, बिल वॉइस डिटेल फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट. इफ वी मेक द एंट्री टू लेजर that needs to bill voice detail, we have to give details of the bill at the voucher entry itself, where we can see the details of bill, specify credit period and get the credit outstanding result balance of each entry. बिल वॉइस डिटेल में हम स्पेसिफाई क्रेडिट पीरियड में हम देख सकते हैं जिससे हमें हर लेजर का आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिल सकता है. पॉइंट नंबर 6, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट. वी कैन कॉन्फ़िगर द प्रॉफिट एंड लॉस एट सम टाइम बिजनेस डोंट शो द ग्रॉस प्रॉफिट. हम प्रॉफिट एंड लॉस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं क्योंकि कभी हमें हमारे बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट नहीं दिखाना होता है तब. पॉइंट नंबर 7, एड एन इंसर्ट वाउचर. वी कैन इंसर्ट वाउचर बिटवीन द टू वाउचर इन टैली. टैली प्राइम में हम किसी भी दो वाउचर को बीच में वाउचर डाल सकते हैं. पॉइंट नंबर 8, वाउचर डुप्लीकेशन. A voucher is a document that
details of the financial transaction and the request to recording the sum into the books of account. वाउचर एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है और इससे अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड करने की आवश्यकता होती है. पॉइंट नंबर 6, सेटिंग क्रेडिट लिमिट. We can set the credit limit in Tally Prime for our customer to control over the outstanding and managing the our crediting customer. आउटस्टैंडिंग कंट्रोल में रहने के लिए और मैनेजिंग द ओनर क्रेडिटिंग द कस्टमर के इसके लिए टैली प्राइम में क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हैं. थैंक यू. Now it's the time of the live demo. I request to Aarti ma'am proceed the head to the live demo session. Thank you. Thank you, Diksha. It was a very nice presentation. I'm sharing my screen. Ma'am, my screen is visible? Yeah, Aarti, it's visible. Okay, thank you. Hello everyone, myself Aarti Narode. I am here to represent the live demo session on behalf of Rajlakshmi Solutions Private Limited. So आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्स एंड ट्रिक्स इन टैली प्राइम. फर्स्ट है नेगोशिएशन ऑफ वाउचर इन डे बुक यूजिंग पेज अप एंड पेज डाउन की. अगर हमें डे बुक चेक करना है तो हम एक एक वाउचर अगर चेक करेंगे तो हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, हमारा टाइम ज्यादा आएगा. अगर हम वही पेज अप और पेज डाउन की से करेंगे तो हमें वहां पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा. जैसे कि मैंने एक वाउचर एंट्री ओपन की, अगर मैं यहाँ पे पेज डाउन करती हूँ तो मुझे अगले वाला वाउचर एंट्री यहाँ पे शो हो रहा है. अगर मैं पेज अप करूंगी तो मुझे पीछे वाली एंट्री यहाँ पे शो हो जाएगी. जैसे मैं यहाँ पे पेज अप किया तो मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री शो हो रही है. अगर मैंने यहाँ पे पेज डाउन किया तो मुझे यहाँ पे पेमेंट की एंट्री शो हो रही है. मैं पेज अप पेज डाउन से यहाँ पे मेरा डे बुक यहाँ से चेक कर सकती हूँ. नेक्स्ट पॉइंट है इन डे बुक व्यू वाउचर वाइज रिपोर्ट एंड एक्सट्रैक्ट. मुझे वाउचर वाइज रिपोर्ट देखना है तो उसके लिए मुझे डे बुक में यहाँ पे शॉर्टकट की दी है F4 की. मैं यहाँ से F4 करती हूँ. यहाँ पे राइट साइड में भी दिया है वाउचर टाइप. यहाँ से मुझे कोई भी वाउचर सेलेक्ट करना है, जो मुझे वाउचर टाइप देखना है वो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी. जैसे मैंने यहाँ पे सेल सेलेक्ट किया तो मुझे यहाँ पे सिर्फ सेल के ही वाउचर दिखा रहे हैं. अगर मैं यहाँ से पेमेंट करूंगी तो मुझे यहाँ पे पेमेंट के वाउचर, पेमेंट के मैंने जितने भी एंट्रीज किए वो मुझे पूरे यहाँ पे शो करेंगी. नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है. अगर मुझे ग्रुप वाइज और लेजर वाइज रिपोर्ट देखना है तो उसके लिए मुझे एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा. वो मैं तब भी कर पाऊंगी जब मैं यहाँ पे वाउचर टाइप सेलेक्ट करूंगी, तभी मुझे वो ऑप्शन एप्लीकेबल होगा. तो उसके लिए हमें शॉर्टकट अल्ट या F8 की यहाँ पे राइट साइड में भी दिखाया है. यहाँ से आप माउस से भी कर सकते हो और डायरेक्टली अल्ट F करके भी कर सकते हो. यहाँ से एक्सट्रैक्ट करूंगी तो मुझे यहाँ पे देखिए ग्रुप वाइज भी रिपोर्ट शो हो रहा है और लेजर वाइज भी रिपोर्ट यहाँ पे शो हो रहा है. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नरेशन फॉर ईच एंट्री. ये ऑप्शन से हम वाउचर में से हर एक लेजर को नरेशन डाल सकते हैं. तो उसके लिए मुझे सबसे पहले अल्टर में जाना होगा, लेजर में जाना है और कोई भी एक लेजर को, जो लेजर को हमें अल्टर में जाना है और वाउचर टाइप में जाना है. वाउचर टाइप में हमें जो भी वाउचर को हर एक लेजर को नरेशन डालना है वो वाउचर टाइप मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है. जैसे मैंने डाला है यहाँ पे पेमेंट, तो मुझे पेमेंट वाउचर में यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर. ये ऑप्शन को यस करना जरूरी है. उसके लिए मैं यहाँ पे यस करूंगी तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ. यहाँ पे जब मैं वाउचर में जाऊंगी, मैंने यहाँ पे पेमेंट की एंट्री, यहाँ पे नरेशन में देखिए यहाँ पे जो मैंने लेजर सेलेक्ट किया है वो लेजर का नरेशन पूछ रहा है. और मैंने यहाँ पे कॉन्ट्रा की एंट्री की है, मैंने यहाँ पे उसको एप्लीकेबल नहीं किया है नरेशन को, तो यहाँ पे मुझे नहीं दिखा रहा है नरेशन के लिए. अभी मैं कॉन्ट्रा को यस करके दिखाती हूँ. अल्टर में जाके
वाउचर टाइप में जाना है और यहाँ पे कॉन्ट्रा, यहाँ पे प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर को यस करना है। ये वाउचर को हम यस करेंगे तो जो भी हमारे पास कॉन्ट्रा वाउचर है वहां पे देखिए यहाँ पे हमें नरेशन पूछ रहा है। जो भी पर्टिकुलर नरेशन होगा वो हम हर एक लेजर को यहाँ पे डाल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रिंट आफ्टर सेविंग द वाउचर। वाउचर सेव करते टाइम पे हमें प्रिंट पूछना चाहिए। यहाँ पे मैं एक सेल का बिल ओपन कर, मैंने सेल बिल ओपन, जब मैं ये सेव करूंगी तो मुझे यहाँ पे प्रिंट नहीं पूछ रहा है, डायरेक्टली वो सेव हो जा रहा है। तो मुझे तो प्रिंट आना चाहिए, तो उसके लिए मुझे प्रिंट आफ्टर सेविंग द वाउचर ये ऑप्शन सेव करना यस करना जरूरी है। तो वो कहाँ से हम एप्लीकेबल करेंगे, अल्टर में जाके वाउचर टाइप में जाना है और जो भी वाउचर टाइप में हमें यस करना है, वाउचर टाइप में प्रिंट चाहिए, जैसे मुझे सेल में चाहिए तो मैं यहाँ पे सेल वाउचर सेलेक्ट करूंगी। तो मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्रिंटिंग में, प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, ये ऑप्शन को मैं यस करूंगी तो तब भी मैं वाउचर सेव करूंगी तब मुझे प्रिंट के लिए पूछेगा। जैसे मैं डेबिट में मैं ओपन करके दिखाती हूँ मेरे पास, अभी देखिए मैं ये वाउचर सेव करने जा रही हूँ तो मुझे यहाँ पे प्रिंट पूछ रहा है, पहले पूछता नहीं था, मैंने वो ऑप्शन यस किया तभी वो यहाँ पे पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट। अगर हमें कभी किसी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विदाउट ग्रॉस प्रॉफिट का दिखाना है तो उसके लिए हमें प्रॉफिट का ऑप्शन नो करना पड़ेगा। तो वो हमें F12 कॉन्फिग जाना है और यहाँ पे शो ग्रॉस प्रॉफिट का ऑप्शन यहाँ पे नो करना है। जब मैं यहाँ पे नो होंगी तो यहाँ पे प्रॉफिट शो नहीं करेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाउचर कैंसिलेशन। मैंने अभी कोई वाउचर एंट्री की है, अगर वो किसी वजह से मुझे कैंसिल करनी पड़ रही है तो मुझे वो सबसे पहले कैंसिल कैसे करना है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करना है जो भी आपको कैंसिल करना है। मुझे पेमेंट की 3 नंबर का वाउचर एंट्री कैंसिल करनी, तो मुझे सबसे पहले वो सेलेक्ट करनी है और यहाँ पे आपको Alt X का ऑप्शन दिया है वो कैंसिल करने के लिए और यहाँ पे नीचे भी आपको ऑप्शन दिया है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ पे मैं यस कर दूंगी। अभी ये वाउचर आपका कैंसिल हो चुका है, यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैंसिल दिखाएगा। मैं और एक आपको कैंसिल करके दिखाती हूँ, जैसे मैं रिसीव का करती हूँ एक कैंसिल, यहाँ पे सेलेक्ट करना है और कैंसिल वाउचर करना है। अभी मुझे रिपोर्ट देखना है कि मैंने कैंसिल किए हुए वाउचर मुझे कहाँ पे शो हो गए, मुझे रिपोर्ट देखना है कैंसिल वाउचर का। तो मुझे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है, एक्सेप्शन रिपोर्ट में जाना है और यहाँ पे आपको कैंसिल वाउचर्स, यहाँ पे आपको जो भी वाउचर के आपने कैंसिल किए, पेमेंट हो, सेल हो या रिसिप्ट हो, जो भी है आपको यहाँ पे शो होंगे। अगर आपको वाउचर टाइप से सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ पे वाउचर टाइप में आके यहाँ पे जो भी आपको देखना है वो वाउचर टाइप सेलेक्ट कीजिए। आपने पेमेंट के जितने भी वाउचर कैंसिल किए आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे, जो भी आप सेलेक्ट करोगे वो वाउचर के आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एड एंड इंसर्ट वाउचर। डे बुक में जाना है और यहाँ से हमें जैसे मेरा ये 4 नंबर का पेमेंट का वाउचर है, मुझे सेम वाउचर नंबर से एक वाउचर इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे वो सेलेक्ट करना है, जो भी आपको इंसर्ट करना है वो वाउचर नंबर सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे Alt I प्रेस करना है इंसर्ट वाउचर के लिए। और यहाँ पे आपको नीचे भी दिया है इंसर्ट वाउचर का, यहाँ पे इंसर्ट वाउचर करोगे सेम नंबर से आपका सेम वाउचर टाइप सेम नंबर से यहाँ पे ओपन हो जाएगा, आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ऐड वाउचर। ऐड वाउचर जैसे मैंने ये 4 नंबर का है, मुझे 5 नंबर का वाउचर आना चाहिए। मुझे यहाँ से 4 और 5 के बीच में और एक वाउचर नंबर ऐड करना है, तो मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है और Alt A प्रेस करना है। यहाँ पे दिया है ऐड वाउचर, यहाँ पे मैं ऐड वाउचर करूंगी तो मुझे 5 नंबर का पेमेंट का वाउचर ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाउचर डुप्लीकेशन। अगर मुझे कोई वाउचर का डुप्लीकेट वाउचर बनाना है, जैसे मेरे पास
ये सेल बिल है, मुझे इसका डुप्लीकेट सेल बिल बनाना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो वाउचर का आपको डुप्लीकेट बनाना है वो वाउचर आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे Alt 2 प्रेस करना है। यहाँ पे नीचे दिया है डुप्लीकेट वाउचर, यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो सेम वाउचर नंबर सेम डिटेल से आपका यहाँ पे डुप्लीकेट वाउचर रेडी हो जाएगा, सिर्फ आपको सेव करना है। सेव करोगे तो ये अभी आपका रेडी हो गया, सेम डुप्लीकेट वाउचर जनरेट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेटिंग क्रेडिट लिमिट। अगर हमें कोई कस्टमर को क्रेडिट लिमिट सेट करना है तो उसके लिए हमें अल्टर में जाना है, लेजर में जाना है, जो भी पार्टी को आपको क्रेडिट लिमिट सेट करनी है वो पार्टी यहाँ पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है। F12 प्रेस करने के बाद में आपको यहाँ पे प्रोवाइड क्रेडिट लिमिट, ये ऑप्शन को आपको यस करना है। ये ऑप्शन को आप यस करोगे तो आपको यहाँ पे वाउचर में क्रेडिट लिमिट का ऑप्शन दिखेगा, स्पेसिफिक क्रेडिट लिमिट। यहाँ पे आपको जो भी पार्टी को जो भी क्रेडिट लिमिट डालनी है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैं ये पार्टी को डालती हूँ 10,000 और ये वाउचर सेव कर देती हूँ। ऐसे आप कोई भी पार्टी को क्रेडिट लिमिट सेट कर सकते हो। और जब आप उसकी वाउचर नंबर वो पार्टी को आप जब बिल बनाओगे तब वो क्रेडिट लिमिट्स के ऊपर आपका बिल जनरेट नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिल वाइज डिटेल्स फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट्स। कोई भी सेल बिल का हमें पेमेंट आया है और वो पेमेंट हमें मेंटेन करना है या आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट हमें मेंटेन करना है, तो उसके लिए हमें ये ऑप्शन यस रखना जरूरी है। तो उसके लिए हमें जाना है अल्टर में, यहाँ पे लेजर अल्टर करना है। जैसे मैं ये डीएस के सप्लायर्स को अल्टर करती हूँ, यहाँ पे आपको F12 प्रेस करना है कॉन्फ़िगर करने के बाद में आपको यहाँ पे दिया है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन को आपको यस रखना है। और नेक्स्ट है फॉर नॉन ट्रेडिंग अकाउंट अल्सो, ये भी ऑप्शन को आपको यस रखना है। ये दोनों ऑप्शन आपको यस रखना जरूरी है। ये ऑप्शन यस करने के बाद में आपको लेजर में यहाँ पे आपको दिखाएगा मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, ये ऑप्शन को आपको यस करना है। जब आपको ये ऑप्शन को आप यस करोगे तो आप जब भी बिल बनाने जाओगे, ये पार्टी का बिल बनाओगे, जैसे मैं यहाँ पे डीएस के सप्लायर्स का बिल बनाती हूँ, जनरेट करती हूँ। यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम सेलेक्ट करती हूँ, यहाँ पे क्वांटिटी मैंने 10 डाली और रेट डाला 10,000। अभी मैं जैसे भी बिल सेव करने जाऊंगी तो मुझे यहाँ पे पूछेगा कि आपका न्यू रेफरेंस है, अगेंस्ट रेफरेंस है कि एडवांस है कि ऑन अकाउंट है, कौन सा है आपको यहाँ से ये सेलेक्ट करना है। और मैंने यहाँ पे ये एंट्री सेव कर दी। अभी आपको इसके पेमेंट की एंट्री बनानी है। आप पेमेंट करोगे तो यहाँ पे आपको पूछेगा पीएस के सप्लायर्स, यहाँ पे आपको पूछेगा कि अगेंस्ट रेफरेंस है क्या। हम जैसे मैं यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस करूंगी तो मुझे यहाँ पे दिखाएगा कि आपको कौन से बिल के अगेंस्ट ये पेमेंट कर रहे हो, तो वो आपको बिल यहाँ पे सेलेक्ट करना है और आप यहाँ से पेमेंट मेंटेन कर सकते हैं। मैं भी सेव कर देती हूँ, यहाँ पे भी सेव हो गया। थैंक यू। Diksha Nati for your presentation. So now it's a time for overview of the today's session. So it's okay, Bhagwati sir. Yeah, thank you, team. Myself is Bhagwati Chandaria. So today's session is tips and tricks. We are running a one series for the tips and tricks. Actually, Tally Prime is a very good product. जहाँ पर काफी चीजें announce हुई है, काफी नई चीजें आ गई है। क्योंकि लास्ट 30-35 ईयर से टैली मार्केट में है। पीपल आर अवेयर अबाउट द टैली ऑपरेशन और नॉर्मल ऑपरेशन सबको मालूम है, लेकिन जो छोटी छोटी टिप्स है एक ही चीज को आपको डबल करते हैं। एग्जाम्पल जिससे मैं लेता हूँ कि एक वाउचर आपको अगर मान लीजिए आप डे बुक में अगर कहीं आपको एक वाउचर ऐड करना है और पर्टिकुलर एक नंबर के बीच में करना है, 4 और 5 के बीच में एक ऐड करना है, 5 वाले को शिफ्ट करना है 6 में,
तो दिस इज अ बिग चैलेंज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन पीपल्स की वो कैसे करना है. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट द थिंग्स की वो मुझे जो नया वाउचर ऐड होना चाहिए वो 5 नंबर होना चाहिए, न कि 6 के बाद वाला होना चाहिए, लास्ट के बाद वाला होना चाहिए. सो ये एक छोटा सा टिप्स था जिसके कारण आप इजी गोइंग आप उसको कर सकते हैं. अब आपको सेम वाउचर सेम प्रोडक्ट आपको एक ही आइटम एक ही टाइप के वाउचर सेल्स वाउचर आपको मल्टीपल लोगों को सप्लाई देना है. तो आपको सेम वाउचर को मल्टीपल टाइम पीपल आर डूइंग द एंट्री. सो नो नीड टू डू दिस. सो आप सेम वाउचर को अल्टर आप R2 करते हैं. एक सिंपल शॉर्टकट की है जिसके थ्रू आप मल्टीपल वाउचर क्रिएट कर सकते हैं, डुप्लीकेट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं और सिंपल कस्टमर का नाम चेंज कीजिए और यू कैन प्रिंट दैट वाउचर इन द डिफरेंट कस्टमर्स. सो दिस टाइप ऑफ द टिप्स जो आपने देखा, जैसे एग्जांपल जैसा बताया आज हमने कि आप पेज अप पेज डाउन से हर एक वाउचर को आप एक क्लिक पे आप देख सकते हैं. वंस यू आर वेरीफाइंग द डेटा कि कितने वाउचर क्या क्या एंट्री हुई है, क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं, नरेशन अपडेट हुआ है नहीं हुआ है, अगेंस्ट वाउचर है नहीं है. देयर इज अ मल्टीपल वे टू ऑडिट द डेटा. सो उसके लिए हर एक वाउचर को ज्यादा के एक एक करके खोलने की जरूरत नहीं. जस्ट यू कैन यूज द पेज डाउन एंड पेज अप. There is a lot of shortcut keys out there that will save your time, save your efficiency, and you can increase your efficiency and productivity. जिसके के लिए हम लोगों ने ये टैली टिप्स एंड ट्रिक्स का जो सीरीज हमने चालू किया है. तो एवरी वीक वी आर डूइंग दिस सैटरडे. टाइम टू टाइम आपको ये चीजें मिलती रहती है. और एवरी वीक वी आर रनिंग योर वन ट्रेनिंग प्रोग्राम एट 4 o'clock at the Saturday. So you can join every Saturday. You can join our session and you can get the more and more information, more and more training programs. You can attend the more training programs and you can increase your efficiency and productivity. और आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, ना कि you are an operator of the Tally. So you can learn Tally in a very efficient way and this is the right direction. And that all the video is uploaded on our YouTube channel. जहाँ हमारा YouTube channel सब्सक्राइब करके आप अगर कोई टाइम कोई सैटरडे आपका छूट जाता है तो you can just refer our YouTube channel and you can check the new uploaded video and new uploaded tips and tricks or new uploaded new features announcement on the Tally Prime जो day to day नई चीजें आ रही. So you can get the benefits and you can run your business smoothly. This is the overall idea of today's session. And as you know, we are also working in the multiple software like Tally Prime and SAP Business One. How you can increase your business. So marketing tools है हमारे पास, email, SMS, WhatsApp, and just that name is Bittrex24 and CRM, pre-sales management, post-sales management. लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर जो कि आपके बिजनेस को हेल्प करेगा, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपके बिजनेस को स्मूथ रन करेगा, आपके बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करेगा, आपके लोगों की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा, आपके एफिशिएंसी लोगों की प्रोडक्टिविटी को आप मॉनिटर कर सकते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द राजलक्ष्मी सॉल्यूशंस. यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस एंड यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ द आवर एक्सपर्टीज एंड नॉलेज ऑफ दिस लास्ट 35 years. And next we are running every month we are running a one offer in particular month segment and SKU. So this week we are running this month we are running an offer for the Tally Prime single to multi user. It means अगर आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपको एक यूजर से ज्यादा अगर है तो आप हमारा Tally Prime single to multi कर सकते हैं. वहाँ आपको काफी अच्छी चीजें, आपको सर्विसेज, आपको एडिशनल एडवांटेज हम आपको दे जिससे आप अपने बिजनेस को रन कर पाए, स्मूथ रन कर पाए. That's it from my side today. It's over to you, Anga. Thank you so much, sir. So soon this session will be uploaded in the YouTube channel. So be connected to our social media to get the latest updates. So thank you everyone for joining. So now we'll wind up the session. Thank you everyone.